ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک آن لائن کام کرتی اور لاکھوں کماتی تھی، لیکن میری اماں کو یقین نہیں آتا تھا اور وہ ہر وقت مجھے گھٹیا ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور کہتی، تیرا یہ پیسہ تو تیرے باپ کی قبر سے آتا ہے، لیکن تو جھوٹ بول کر مجھ سے سچ چھپانا چاہتی ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ ابا کی قبر سے پیسہ کیسے آ سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی، پھر دیکھتی ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے، اور پھر پورا ہفتہ میں فارغ رہی، اور جب اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھا تو چیخ ماری کیونکہ اکاؤنٹ میں 2 کروڑ۔ میرا نام سمینہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری اماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھیں۔ ابا نے اماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ ابا کی دوسری بیوی، جنہیں میں بچپن سے اماں ہی کہتی تھی، بہت ہی چالاک اور ظالم عورت تھی۔ مجھے تو اپنی ماں کا چہرہ تک یاد نہیں تھا۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا تو ستیلی ماں کو ہی تب سے اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ میرے باپ کی دوسری شادی کے بعد کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میں گھر بھر میں اکلوتی ہی تھی۔ اپنی اولاد نہ ہونے کے باوجود میری ستیلی ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی بالکل بھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ بچپن سے ہی اماں میرے ساتھ ناانصافی کرتی تھی۔ ابا جو کچھ بھی گھر پر کھانے وغیرہ کے لیے لاتا وہ مجھ سے چھپا کر اپنی الماری میں رکھ لیتی تھی۔ نہ مجھے کوئی فروٹ ملتا تھا کھانے کو اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ صحیح غذا نہ ملنے سے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے جسم سے طاقت بالکل ہی ختم ہو رہی تھی۔ میرا رنگ جو پہلے دودھ کی طرح سفید تھا اب بالکل ہی پیلا زرد ہو گیا تھا۔ میرے خاندان والے اب مجھے دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ وہی سمینہ ہے یا کوئی اور ہے۔ میری اماں میری روز بروز گرتی صحت کی بالکل بھی پرواہ نہ کرتی، مجھے زبردستی گھر کے کاموں میں لگائے رکھتی تھی، حالانکہ اس وقت میں صرف 10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ ابا کے سامنے اماں بہت ہی میٹھی بن جاتی تھی اور ویسے بھی اماں کے آگے ابا کی کچھ خاص نہیں چلتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی اماں کو پسند نہیں آتا، مگر وہ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اور اس نفرت کی وجہ مجھے کبھی سمجھ نہ آ سکی۔ میں اسکول جاتی تھی، اسکول ہمارے محلے کے قریب ہی تھا۔ اماں کو تو میرا اسکول جانا بھی پسند نہیں تھا، مگر ابا اس معاملے میں تو اس کی بالکل بھی نہیں سنتے تھے، اور شکر تھا کم از کم مجھے پڑھنے کی اجازت تو ملی تھی نا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں کیسے اسکول سے آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے گھر کے کام کیا کرتی تھی اور پھر اماں کی مار اور تانے بھی سنتی تھی۔ اماں کے سر پر کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے میرے بارے میں سوال کرتا، اس لیے وہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہتی تھی۔ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد شام تک مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ شام میں جب ابا آتا تو تبھی مجھے چین ملتا تھا اور میں اس وقت بیٹھ کر اپنا ہوم ورک مکمل کرتی تھی۔ میں ابا سے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ جب ابا کو ہی میری گرتی صحت اور خاموشی دکھائی نہیں دیتی تھی تو مجھے خود سے کہنے کا بھی بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ گویا ابا جان بوجھ کر سب کچھ اندیکھا کر رہا ہے اور اسے سب معلوم ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے گھر پر میرے ساتھ اماں کیسا سلوک روا رکھتی ہے، مگر وہ کچھ کہتا نہیں ہے۔ میں بچپن سے اماں اور ابا کو آپس میں شدید جھگڑے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان جھگڑوں کی اصل نوعیت کیا تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی کہ یہ جھگڑے دراصل میرے کو وجہ بنا کر کیے جاتے تھے، بلکہ میں تو شاید صرف ایک بہانہ تھی۔ انہیں تو جھگڑنے کی عادت تھی، بس کوئی وجہ نہیں ملتی تھی تو مجھے وجہ بنا دیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ یہ جھگڑے میری بھلائی کے لیے کیے جاتے تھے، بلکہ ان جھگڑوں کا ایک ہی موضوع ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے میرے ماموں کو کب سونپا جائے گا۔ میں تو یہ جان کر ہی حیران رہ گئی کہ میرے والدین ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک دن ان کے جھگڑوں میں ہونے والی بحث میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ مجھے میرے ماموں کے ہاں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے ماموں ایک بہت ہی امیر آدمی تھے۔ میری اماں نے میرے ابا سے پسند کی شادی کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ شادی گھر والوں کی مرضی کے بنا ہوئی تھی، بس انہوں نے اپنے عالیشان گھر سے کوئی چیز یا جہیز میں کوئی گھر وغیرہ نہیں لیا تھا، بس ابا کے ساتھ وہ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے، بس اماں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ابا نے بھی صاف منع کر دیا تھا کہ انہیں سوائے لڑکی کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت تو ابا بڑی محبت کے علمدار بنے ہوئے تھے، مگر بات دراصل یہ تھی کہ ابا جانتے تھے کہ اماں جہیز میں کچھ لائیں یا نہ لائیں، مگر اماں کے نام پر ان کے حصے کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے جو ان کے والد وغیرہ کی طرف سے ملی تھی انہیں۔ بس یہی لالچ میں آ کر ابا نے یہ شادی کی تھی۔
जिससे मेरी माँ बेचारी सारी जिंदगी मोहब्बत समझती रही। अगर वो जिंदा होती तो वो अपनी आंखों से देख सकती थी कि अब्बा ने कैसे उनके एतमाद को तोड़ा था। मगर शुक्र ही था एक तरह से वो इस दर्द को सहने से बच गई थीं, क्योंकि टूटा दिल बहुत अजियत देता है। एतबार टूट जाने से बड़ा दुख शायद ही कोई हो। मेरे अब्बा को बहुत बाद में जाकर ये बात पता चली कि अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी सारी की सारी जायदाद अपने होने वाले बच्चे के नाम करवा दी थी। उन्होंने ये काम मामू को कह कर करवाया था और अब्बा को बाद में सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर उन्हें इतनी मोहलत ही ना मिली। ये सब बातें बहुत अरसे बाद मामू ने मुझे बताई थी। मामू से मैं वैसे तो बहुत कम मिली थी, मगर जितनी भी बार मिली वो मुझे हर बार से बढ़कर अच्छे लगे थे। अम्मा की वफ़ात के कुछ सालों बाद जब अब्बा ने बातों बातों में बहाने से मामू से अम्मा की जायदाद के बारे में कुछ उगलवाना चाहा, तो मामू ने उस वक्त अब्बा को साफ बता दिया था कि वो जायदाद मेरी बहन ने अपने बच्चे के नाम यानी समीना के नाम कर दी थी। अब जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती ये किसी को नहीं मिल सकती है। अब्बा और अम्मा के तो अरमानों पर यह सुनकर ही ओस पड़ गई थी, क्योंकि इस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी और वो लोग अब जायदाद हथिया नहीं सकते थे, इसलिए अब उन्हें मुझसे कोई मतलब भी नहीं रहा। अब्बा को तो वैसे भी मेरी कोई ख़ास परवाह नहीं रही थी, इसलिए वो दोनों मुझे एक बोझ की तरह समझ रहे थे और इन दोनों की कोशिश थी कि मुझे अपने सर से उतार फेंके। और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता था और वो था मेरे मामू का नाम। मगर मसला ये था कि मेरे मामू फ़िलहाल बाहर मुल्क में रहते थे, जिसकी वजह से वो मुझे अपने साथ नहीं रख सकते थे। इनकी अपनी भी फैमिली थी जो उनके साथ ही रहती थी और वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहते थे। ये नहीं था कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते या मुझे अपने पास रखने को राज़ी नहीं थे, मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि वो यहाँ नहीं रहते थे और दूसरा मसला ये कि वो इतनी छोटी उम्र में मुझे अपने बाप से अलग नहीं करना चाहते थे। अलग तो मैं भी नहीं होना चाहती थी, चाहे वो लोग मेरी परवाह भी न करते हों, मगर मुझे इन सब से प्यार था। अम्मा और अब्बा से मुझे बेहद प्यार था। मैं किसी सूरत उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, मगर वो दोनों मुझे साथ रखने को राज़ी भी नहीं थे। तभी मेरे मामू ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया। वो मुझसे मिलने आए और सारे हालात का जायज़ा लिया तो उन्हें असल मसला समझ आ गया। उन्होंने मुझे मेरे अब्बा से दूर नहीं किया, बल्कि इस मसले का ये हल निकाला कि अपनी फैमिली को लेकर अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान ही शिफ्ट कर दिया और यहीं रहने लगे। गो कि उनका घर एक पोश इलाके में था, मगर वो इसी शहर में थे। ये तसल्ली भी मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि मेरे अब्बा और अम्मा सिर्फ मेरे मामू से ही दबते थे। कम से कम अब कोई तो था जो मेरी खैरियत पूछता था। मामू को अब्बा और अम्मा के लालचीपन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था, तभी उन्होंने मेरा सारा खर्चा उठाना शुरू कर दिया। मगर उन्होंने फिर भी अब्बा के हाथ पर ज़्यादा रकम नहीं रखी थी कि कहीं वो मेरी जिम्मेदारी से पूरी तरह ही ला ताल्लुक़ ना हो जाएं। मेरा दाखिला मामू ने उसी स्कूल में करवा दिया जहां उनके अपने बच्चे पढ़ते थे। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, मगर अम्मा अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आई थी। वो अब भी मुझ पर जुल्म करती थी, मगर मैं अब भी किसी को कुछ नहीं बताती थी। बस रात के अंधेरे में अपने तकिए पर सर रखे चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। कभी कभी अम्मा अब्बा के माबीन होने वाले झगड़ों को सुनकर मैं रातों को डर कर उठ जाती थी। मैं एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां बेहिसी राज करती थी। घर के दोनों मकीनों को इस तीसरे वजूद की कोई परवाह न थी। मैं नफ्सियाती तौर पर बहुत बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे दिमाग में ये झगड़े, ये ताने बहुत बुरी तरह बैठते जा रहे थे। मैं बहुत हसास तबीयत की मालिक थी। छोटी से छोटी बात को महसूस करती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर दहल कर रह जाती थी, परेशान हो जाती थी, रो पड़ती थी। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, किससे कहूं। हालांकि मामू अक्सर मुझसे पूछते भी थे कि अम्मा अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक तो है ना, मगर मैं बिना कोई जवाब दिए बस खामोशी से उन्हें देखे जाती थी। मैं क्या जवाब देती उन्हें? अगर उन्हें कुछ बताती तो वो ज़रूर अम्मा अब्बा से सवाल करते और इस बात का खिमियाजे के तौर पर उनका गुस्सा मुझे ही बर्दाश्त करना होता। इसलिए मैंने चुप रहने में आफियत जानी। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि किसी को दिल की बात बता सकूं। इस सब के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं थी। मैं एक ऐसे माहौल में बड़ी हो रही थी जहां मैं कोई बहादुरी हरगिज नहीं दिखा सकती थी। मुझे डरा डरा कर रखा गया था। हल्की सी आहट पर मेरा दिल एक पत्ते की मानित कांप उठता था, लरस जाता था। एक डरे हुए माहौल में परवरिश पाई थी मैंने। तरबियत तो की नहीं गई थी, जो सीखा जमाने से सीखा
اور زمانے کے سکھائے گئے سبق انسان کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ زندگی اتنی تلخیوں سے بھری پڑی ہے کہ کہانی سنانے بیٹھوں تو یہ روادات سنانے میں گھنٹوں نکل جائیں، مگر پھر بھی یوں لگتا ہے کہ کوئی درد کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ شاید ہر ایک کا دکھ ہی اسے بڑا لگتا ہے، ورنہ سننے نکلوں تو ہر ایک کی ہی روادات دل خراش ہوتی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ ایک دوسرے کو درد دینے میں اتنے مصروف ہیں، کوئی اس درد کی دوا کیوں نہیں بنتا۔ میرا تو سارا بچپن ہی تکلیف دے گزرا تھا، بس وہ لمحات جو ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ گزرتے تھے وہی میرے لیے قیمتی ہوتے تھے، اور بہت ہی یادگار خوبصورت لمحات۔ یوں لگتا تھا کہ گویا زندگی انہی لمحات میں جی رہی ہوں۔ ماموں کے 2 بیٹے اور بیٹی تھی۔ چھوٹے بیٹے اور بیٹی سے تو میری خوب دوستی تھی، کیونکہ ہم سب تقریباً ہم عمر ہی تھے، مگر ماموں کے بڑے بیٹے جن کا نام آہت تھا وہ شروع سے ہی ریزرو رہتے تھے۔ ان سے چھوٹا بیٹا موہد اور بیٹی ردا بہت ہی ہنسمکھ اور شرارتی تھے۔ میری ان دونوں سے بچپن سے ہی بہت گہری دوستی تھی، ہماری آپس میں بہت بنتی تھی۔ ماموں جب بھی ویکنڈ پر مجھے اپنے گھر لے کر جاتے تھے تو ہم تینوں رات گئے تک بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے۔ اس دوران آہت بھائی اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی غصے والا انسان تھا، بس وہ زیادہ تنہا رہنا پسند کرتے تھے، یا پھر وہ ہماری عمر کے نہیں تھے، اس لیے ہمارے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھتے تھے۔ انہیں ڈاکٹر بننے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ غصہ تو نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کا ایک روب تھا، اور گھر بھر کا سب سے شرارتی بچہ موہد جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا وہ ان سے ڈرتا تھا، اور جب بھی کبھی وہ ان سے کسی بات پر ڈانٹ کھاتا تھا تو میں اور ردا تب دل کھول کر خوش ہوتی تھیں، کیونکہ جتنا وہ ہم دونوں سے چیٹنگ کر کے گیمز جیتتا تھا اس کے بدلے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے موہد میں سنجیدگی آنے کی بجائے مزید شرارتیں ہی آ رہی تھیں۔ وہ شاید سنجیدہ رہ نہیں سکتا تھا، مگر میں اور ردا کم ہی شرارتیں کرتی تھیں۔ مامی ہمیں سمجھاتی تھی کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ مامی بہت ہی اچھی عورت تھی، ان کے پاس رہتے ہوئے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مجھے وہ ماں کی طرح ہی لگتی تھی۔ وہ نرم بولتی تھی اور کبھی مجھے ڈانٹتی بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا بنا کر کھلاتی تھی۔ وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ ماموں کے ہاں میری زندگی کے بہترین دن گزرے تھے، مگر جیسے ہی اتوار کی شام آتی تھی اور مجھے واپس گھر جانا پڑتا تھا تو مجھے یہ کام ایک بوجھ کی طرح ہی لگتا تھا۔ میرا دل ایک دم بوجھل سا ہو جاتا۔ پھر سے وہی سب سننے کی ہمت میں خود میں جمع کرتے ہوئے گھر جایا کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو اب ایک معمول بن کر رہ گیا تھا، مگر اب تک مجھے ہر طعنہ بہت بری طرح لگتا تھا اور میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ میں اب تک ان سب کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ اماں کو میرا وہاں جا کر رہنا ایک عیاشی لگتا تھا، اور ان کے خیال میں وہ لوگ مجھے گھر والوں کے خلاف پٹیاں پڑھاتے رہتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی تو اماں کو ایک نیا موضوع مل گیا کہ ان کے بیٹے اب جوان ہو گئے ہیں، تو تم 2 دن وہاں کیوں رہنے جاتی ہو؟ حالانکہ جن بیٹوں کی بات وہ کر رہی تھیں ان میں سے ایک نے اب ہاسٹل رہنا شروع کر دیا، اور مہینے 1.5 بعد ہی وہ آتا تھا، اور دوسرا چھوٹا تو بہت ہی کم گھر پر پایا جاتا تھا۔ میں تو ویسے بھی ماموں ممانی اور ردا سے ملنے چاہتی تھی، مگر اماں اب اس بات کے بھی تانے مارنے لگی تھی۔ مجھے یہ سب بہت ہی زیادہ برا لگتا تھا، کیونکہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اور ردا چونکہ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں تو اسی لیے واپسی پر میں اس کے ساتھ آتی تھی۔ وہ مجھے گھر کے قریب اتار دیتی تھی۔ اماں کو یہ بھی آنکھ نہ بھاتا، مگر یہ ماموں کا حکم تھا، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں بول پاتی تھیں، بس مجھے ہی سامنے پا کر طنز کے تیر برسا دیتی تھی۔ دوسرا کام جو وہ بڑے دل سے کرتی تھی وہ ابا کو میرے خلاف بھڑکانے کا کام تھا۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح میری پڑھائی چھڑوا دیں، مگر اس معاملے میں نہ جانے ابا کیوں اڑ جاتے تھے، شاید ماموں کی وجہ سے، مگر اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے پڑھائی سے ہٹا دیا جائے۔ اور اس بات کا عقدہ بھی مجھ پر بہت جلد کھل گیا کہ اماں کے اس شد و مت سے اصرار کے پیچھے دراصل کیا وجہ کار فرما تھی، اور جب مجھے اصل وجہ پتہ چلی میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اماں نے اب نیا گیم کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری شادی اپنے دنیا جہاں کے آوارہ اور جواری بھائی سے کروانا چاہتی تھی، جس سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اماں میری شادی صرف اس لیے اس سے کروانا چاہتی تھی، ایک تو وہ مجھے دبا کر رکھ سکتی تھی، اور دوسرا اگر میری شادی اس کے بھائی سے ہو جاتی ہے تو وہ میری جائیداد پر بآسانی قابض ہو سکتی تھی۔ بس یہی 2 وجوہات تھیں جنہیں وجہ بنا کر وہ میری شادی کرنا چاہتی تھیں اپنے نکھٹو بھائی سے۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں میری شادی کہیں اور نہ ہو جائے، لیکن میرا اماں کے بھائی سے شادی کرنے کا
कोई इरादा नहीं था। मामू को तो अभी तक इस बात की भनक तक नहीं पड़ी थी और ना ही मैंने बताया था कुछ भी। इन्हीं दिनों मेरे इम्तिहानात शुरू हुए तो मैं उनकी तैयारी में मसरूफ हो गई और इस तैयारी के दौरान मुझे पता ही न चला कि कब अम्मा ने अपने भाई को मेरे पीछे लगा दिया था। एक दिन कॉलेज से जब मैं पेपर देकर बाहर निकल रही थी, मेरे साथ रिदा भी थी। हम दोनों गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहे थे, तब वो मुझे वहां दिखा। मेरी अचानक ही उस पर नजर पड़ी थी। पहले तो मुझे ये समझ ही ना आया कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद वो किसी और काम से आया हो, इसीलिए मैं नजरअंदाज करके गाड़ी में बैठ गई। अगले दिन फिर से वो मुझे नजर आया और अब ये सिलसिला तवातुर के साथ चलने लगा था। एक दिन उसने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैं उसकी इतनी जुर्रत पर हैरान रह गई थी। मैं उसकी आवाज देने पर रुकी तो वो बोला, क्या हुआ, तुम तो इतना भाव खा रही हो? हमारा रिश्ता तय हो रहा है, जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो, इस शादी के लिए तैयारियां कब से शुरू करें? मैं तो इसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। मेरे साथ खड़ी रिदा भी शौक में थी। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। रिदा मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन है, तो मैंने उससे बताया कि ये मेरी अम्मा का भाई है और अम्मा उससे मेरी शादी करना चाहती है। रिदा ने मेरी बात सुनकर कहा कि ऐसे कैसे शादी कर देंगी तुम्हारी? इस दिन मैं बहुत ही उलझे उलझे दिमाग के साथ घर पहुंची थी। मैंने सोच लिया था आज अम्मा से साफ बात करूंगी कि वो मेरे तालीम हासिल करने की जगह है, अपने भाई को वहां मत भेजें। मगर मुझे ये सब कहने का वक्त ही ना मिला, क्योंकि जब मैं घर गई तो अम्मा घर पर नहीं थी। पूरा घर साए साए कर रहा था। पता नहीं अम्मा कहाँ गई थी। अमूमन तो वो इस वक्त घर पर ही होती थी, क्योंकि दोपहर को इसे सोने की आदत थी और वो हर हाल में सोती थी। आज न जाने कहाँ थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि घर का दरवाजा बजा। मैंने उठकर खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वो हमारे पड़ोस वाली आंटी का ही छोटा बेटा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बोला, आपके अब्बा अस्पताल में हैं, आपकी अम्मा भी वहीं पर हैं, इनके पास। अम्मा ने मुझे इसलिए भेजा है कि आप घर पर अकेली होंगी, इसलिए घर लॉक करके हमारे घर आ जाएं। इसकी इतनी बड़ी बात में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई थी और मैंने उससे पूछा था कि अब्बा को क्या हुआ है, तो उसने कहा काम के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है अचानक, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। मैंने उससे कहा कि तुम घर चले जाओ और आंटी से कहो मेरी फिक्र मत करें, बस मुझे अस्पताल का बता दें, मैं अपने मामू के साथ चली जाऊंगी। फिर अंदर जाकर मैंने रिदा को कॉल करके सारी बात बताई। इतने में वो लड़का अस्पताल का नाम ले आया। मैंने कागज लेकर रख लिया। रिदा जब मुझे लेने पहुंची तो मैंने उसे सीधा अस्पताल चलने को कहा। साथ ही मामू को भी कॉल करके बता दिया। मामू ऑफिस होते थे तो वो वहीं से निकल आए। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि अब्बा की हालत अब तक खराब है। हम कई घंटे इंतजार करते रहे मगर सब बेसुध गया। रात 9 बजे डॉक्टर ने आकर बताया कि अब्बा नहीं रहे। मैं तो ये सुनकर रोने लगी। अम्मा भी रोने लगी थी। मामू ने ही सारा बंदोबस्त किया था। रिदा हमें लेकर घर चली आई। अब्बा का जनाजा वगैरह के सारे इंतजामात मामू ने ही किए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और ये मेरे साथ अचानक हो क्या गया है। हमारा घर ताजियत के लिए आने वाले मेहमानों से भरा पड़ा था। हर कोई आकर तसल्ली और दिलासे देकर जा रहा था। अजीब सा वक्त था वो भी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अब्बा यूं भी छोड़ जाएंगे हमें। जनाजा चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी वापस अपने घरों को जाने लगे। रिदा इस रात मेरे पास ही ठहर गई थी। सारी रात मैं सो न सकी थी। अगले कई दिन मुझसे ठीक से खाना तक न खाया गया। मुझे यूं लग रहा था मैं खाली हाथ रह गई हूँ, जैसे सब खत्म हो गया हो। अम्मा भी कई दिन तक अपने कमरे में ही बंद रही थी। वो वक्त बहुत मुश्किल था मगर गुजर ही गया। अब्बा के जाने के बाद जिंदगी अजीब हो गई थी। कुछ महीने तो गुजारा होता रहा मगर फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया और इस काम को पहले मैंने कुछ महीने बहुत मेहनत से सीखा था। मैं पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठी रहती थी। अम्मा को मेरी इस आदत से सख्त चिढ़ थी। उसे लगता था कि मैं कामों से जान छुड़वाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हूँ, मगर ऐसा हरगिज नहीं था। मेरा कॉलेज दोबारा स्टार्ट हो गया था। मैंने अब ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम आने लगा था। मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। शुरू में इतने पैसे नहीं मिलते थे मगर जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया पैसे भी ज्यादा मिलने लगे थे। अम्मा को मेरी ये कमाई एक आंख न भाती थी। वो समझती थी कि मैं कोई गलत काम करती हूँ, इसलिए हर वक्त मुझे घटिया होने के ताने देती रहती थी। मगर मैं उससे बहुत समझाती तो वो आगे से मुझे बोलती कि ये पैसा तेरे बाप की कब्र से आता है
और तो मुझसे झूठ बोलती है। मैं हैरान रह जाती थी कि अम्मा ऐसी बात क्यों कह रही हैं। फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ कि अम्मा की बात वाकई सच है या नहीं। यही देखने के लिए मैंने पूरा एक हफ्ता कोई काम ना किया, बिल्कुल ही फारिग बैठी रही थी मैं। मगर जब एक हफ्ते बाद मैंने अपना अकाउंट देखा तो चीख मारी, क्योंकि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ जमा हुए थे। मैं तो हैरत से पागल होने वाली थी। मैं अभी सोच ही रही थी कि ये कैसे हुआ। तभी मैंने अपने बैंक की ऐप ओपन करके देखा तो पता चला कि ये 2 करोड़ मामू ने डलवाए हैं मेरे अकाउंट में। मैंने फौरन से मामू को कॉल की और उनसे पूछा कि आपने ये 2 करोड़ मेरे अकाउंट में क्यों डलवाए। तो उन्होंने कहा, ये पैसा दरअसल तुम्हारी अम्मा का था। जब वो जिंदा थी तो तुम्हारे नाना इनके अकाउंट में हर महीने अच्छी खासी रकम जमा करवाते थे, जो कि 2 करोड़ तक बन गई थी। तुम्हारी माँ इन पैसों को खर्च नहीं करती थी। तुम्हारे अब्बा को इन पैसों का इल्म था, मगर वो इस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब आज जबकि तुम 18 साल की हो चुकी हो तो मैंने ये अमानत तुम्हें सौंप दी है। मामू की बात सुनकर मुझे याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है और मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे गई। मामू से बात करके मैं उठकर बाहर आई तो देखा अम्मा का भाई आया बैठा था। मुझे देखकर खबासत से मुस्कुराने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया मगर जब्त कर गई। अम्मा किचन में थी। मैं वापस अंदर आकर लेट गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने उठाकर देखा तो रिदा की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया तो वो बोली, कहाँ गुम हो? जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैं फ़ोन रख कर उठकर तैयार होने लग गई। कुछ देर बाद रिदा आई और मुझे अपने साथ ले गई थी। अम्मा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जब भी वो हमारे घर आती वो इससे ठीक से बात तक न करती थी। मुझे अम्मा का ये रवैया बहुत बुरा लगता था, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो ज़रा ज़रा सी बात को अपनी अना का मसला बना लेती हैं। मैंने और रिदा ने उस दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारा। थोड़ी देर बाद मोहित भी हमारे साथ ही आ गया था। हमने अच्छा सा डिनर किया। फिर रात को उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। मैं एक अच्छा दिन गुजार कर घर आई तो अम्मा एक अलग अदालत सजाए बैठी थी। मुझे सामने देखते ही बोले, तुम्हारा बाप नहीं रहा तो क्या अब अवारों की तरह घूम घूम कर मुझे मोहल्ले में बेइज्जत करना चाहती हो? लड़की टिक कर घर बैठ जाओ और छोड़ दो ये पढ़ाई वढ़ाई भी। भूल जाओ अब सब कुछ। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने भाई से पक्का कर दिया है और अब तुम्हारी जल्द शादी कर दूंगी। ये बात सुनकर मैंने शौक से उन्हें देखा और बोली कि मैं ना ही अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी और ना ही आपके भाई से शादी करूंगी। मेरे इनकार पर वो गुस्से में आगे बढ़ी और मुझे मारने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे सर पर अब कोई नहीं रहा। इस रात मैंने रिदा को कॉल की और सारी बात बताई। वो सब सुनकर बेहद परेशान हो गई। कुछ घंटों बाद जब सुबह हुई तो उसने मामू को सारी बात बताई। मामू फटाफट मुझे लेने आ गए। अम्मा ने खूब वावेला किया मगर मामू ने साफ कह दिया कि वो मुझे साथ लेकर ही जाएंगे। फिर उस दिन मामू मुझे अपने साथ ले गए थे। 2 दिन बाद मामू ने ऐलान किया कि वो मेरा रिश्ता अपने बेटे आहत से पक्का कर रहे हैं। मामू के इस अचानक फैसले से मैं शुश्तर रह गई थी। न जाने मामू ने यह फैसला क्यों किया था, मगर एक बात मैं जानती थी कि वो मेरे लिए कभी कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। तभी जब मामू ने मुझसे मेरी रजामंदी मांगी तो मैंने उनकी ख्वाहिश पर सर झुका लिया। रिदा तो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि मैं उसकी भाभी बनने वाली हूँ। मामू ने मेरी और आहत की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। बाकी सब तो ठीक था, मगर अब तक मुझे ये नहीं पता था कि आहत की मर्जी इस रिश्ते में शामिल है या नहीं, क्योंकि इस हवाले से उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। इसका रवैया आज भी मुझसे पहले की तरह ही लिया दिया था। जब रिश्ता बदला था तो एहसासात भी बदल गए थे। मेरा दिल उसकी तवज्जो मांगता था। कोई शरारती सा जुमला, कोई लतीफ सी बात, कोई एहसास, कोई खुशी, कोई जज्बात, मगर उसकी तरफ से सिर्फ सर्द खामोशी थी और कुछ नहीं। मेरे दिल को पतंगे से लग गए। मुझे लगा कि वो शायद इस रिश्ते पर खुश नहीं। मैं परेशान सी हो गई। मैंने रिदा से बात करने का फैसला किया और एक दिन मैंने मौका देखकर उसे इस बारे में बात कर ही ली। तभी उसने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम तो शुरू से जानती हो कि भाई ऐसे ही है, वो किसी से भी बहुत ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए तुम परेशान मत हो। ये रिश्ता बाबा ने उनसे पूछकर ही तय किया है। वो खुश होंगे तभी हाँ की होगी ना, वरना इनके साथ कौन जबरदस्ती कर सकता है। रिदा की बातों से मुझे काफी तसल्ली हुई थी। तभी मैंने एक बार फिर से ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। मैं उसकी तवज्जो की तालिब थी, मगर वो मुझे आंख उठाकर नहीं देखता था। वो जॉब पर जाता था और मैं इसकी वापसी की रात तकने लगती थी, मगर उसकी बेरुखी अब मुझे मारने लगी थी। आखिर कब तक और कितना मैं बर्दाश्त करती।
मैं अब थकने लगी थी। मेरा दिल करता था कि एक बार मामू से कहूँ कि अपने बेटे से एक बार पूछ लें, अगर वो राजी नहीं इस रिश्ते पर तो इस रिश्ते को बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, मगर ये सब बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। फिर इस मुसलसल बेरुखी से थक हार कर मैंने उसका इंतजार करना छोड़ दिया। इन्हीं दिनों मैंने और रिदा ने यूनी में एडमिशन ले लिया था। इस वजह से मेरा ध्यान भी बट गया था। मैंने और रिदा ने एक ही डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। हम दोनों सारा वक्त साथ ही गुजारती थी। मोहित भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यहाँ लाइफ काफी अच्छी गुजर रही थी। वैसे तो हम दोनों साथ ही जाती थी, मगर एक दिन मोहित और रिदा दोनों ने छुट्टी कर ली, मगर मैं यूनी चली गई। मौसम एकदम बदल गया था। 2 पीरियड्स के बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। सब स्टूडेंट अपने अपने घरों को जाने लगे। एक बस मैं ही हवास बाख्ता खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। हर तरफ मूसलाधार बारिश बरस रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे घर जाऊं। कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रही थी। मेरा फोन तक काम नहीं कर रहा था। मैं यूनी के गेट के बाहर अकेली खड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मैं इस बारिश में डूब जाऊंगी। अभी मैं बस रो देने ही वाली थी कि उसी पल एकदम से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी से आहत बाहर आए और तेजी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी तेजी से चलाते हुए घर की तरफ ले गया। मैं सारे रास्ते अजीब से खौफ में रोती रही। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर आहत ना आते तो मैं क्या करती। घर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और रुख मेरी तरफ मोड़ा। फिर बोले कि प्लीज चुप कर जाओ, कब से रो रही हो। उनके लहजे में इल्तिजा थी, जिसे महसूस करके मैं एकदम से रोना धोना भूलकर उन्हें देखने लगी थी। मुझे इस तरह हैरत में देखकर वो बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। फिर बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या सोचती हो कि मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं, मगर दरअसल ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही थोड़ा कम बोलता हूँ और मुझे लंबे लंबे इजहार मोहब्बत भी नहीं आते। बस साफ लफ्जों में कहता हूँ कि तुम्हें हम सफ़र बनाकर बहुत खुशी महसूस करूँगा। ये मेरा अपना फैसला है, इसलिए तुम हर फजूल बात छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो कहता जा रहा था और मैं यकठुक उसकी आंखों में फैलते मोहब्बत के रंग देख रही थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।